کہ کمزوری جو ہمارے حالات کا نتیجہ ہے، جو ہمارے ماحول کا نتیجہ ہے، جو ہمارے تساہل کا نتیجہ ہے، جو ہماری ہر طرح کی لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے، اس نے دراصل ہم کو کمزور کیا ہے۔ ہم آج دیکھنے والے کو کمزور نظر آتے ہیں، حالانکہ ہم نسل شیر ہیں۔ اور شیر نہ کبھی ہارتا ہے، نہ اس کے ہارنے کا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ وقتی طور پر ہاں شکار ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے، لیکن دراصل شکاری تو شیر ہی ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنے اندر جو برسوں سے احساس کمزوری جاگزی ہو چکی ہے، ہمارے اندر جو خود اعتمادی کی جو دبیز پرتیں تھی جو ٹوٹ چکی ہیں، انہیں پھر سے مضبوط کرنا ہے۔ آج ہمیں اپنے اندر کے انسان کو للکارنا ہے، اس کا خون، اس کا ڈی این اے ایک بہترین انسان کا ڈی این اے ہے، ایک بہترین قوم کے افراد کا ڈی این اے ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی، ہمت ہارنے کی، پشیمان ہونے کی، پسماندہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم آج دنیا کے پس منظر میں جو حالات ہیں، روہنگیا کے مسلمانوں کو لیجیے جو مرغیوں کی طرح کٹ رہے ہیں، فلسطین کی طرف نظریں دوڑائیے، آپ افغانستان کو لیجیے، عراق کو لیجیے، کشمیر کو لیجیے، کسی بھی ملک کو جائیے، حتیٰ کہ چند دن پہلے ہم سری لنکا گئے تھے، وہاں کے مسلمانوں کی ہم نے حالت دیکھی، ان کی حالت اور ہماری حالت کچھ فرق نہیں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان چاہے کہیں کا ہو، آج ایک طرح سے اپنے پیروں سے گویا زمین کھسک گئی ہے، ایسے احساسات کا، جذبات کی جگہ بنا ہوا ہے۔ تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے بالکل سنجیدگی کے ساتھ، اور یہ سوچنے کا کام 100% تمام پبلک کو لے کر ہم نہیں کر سکتے۔ سوچنے کا کام چند انٹلیکچوئلز کرتے ہیں جن کے یہاں ویژن ہوتا ہے، اور جو ویژن رکھتا ہے وہ اگر اپنے ویژن کو عمل میں لانے کی کوشش کرے، قوم کے لیے مثبت راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرے، تو پھر ہمارے مسائل نہ رہیں گے، ہمارے حالات جو اب ابتر ہیں وہ نہ رہیں گے۔ یہ حالات خاص کر ہندوستان میں اردو کے لیے ہو، معاشرتی سطح پر ہو، اکنامیکل سطح پر ہو، ہندوستان میں خاص کر جو تنزل کا ہم شکار ہیں، اس کی وجہ جہاں کئی اور وجوہات ہیں، اس کی وجہ جیسا کہ ہمارے تاج محمد صاحب نے کہا، ایک اہم وجہ ہماری زبان کا ہماری نسلوں سے چھن جانا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی قوم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ توپ کی ضرورت نہیں ہے، سوپ سے مارا جا سکتا ہے، اور یہودیوں نے یہی عمل کیا، یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ انہوں نے توپ کا استعمال نہیں کیا، سوپ سے اور شیمپو سے ساری دنیا کو مارا۔ آج ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پروڈکٹس خریدنے پر مجبور ہیں۔ آج کی جو سیاسی چالیں ہیں، جو ایک قوم دوسری قوم کو جس طریقے سے دبا کر آگے آنا چاہتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قوموں کو ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی معیشت کی ساری چیزوں کو فنا کیا جاتا ہے، جبکہ قوم کو مارا نہیں جاتا، اس کے ساتھ جڑی ہوئی فلاحی چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ جیسے اس کی مثال دینا چاہوں گی کہ ایک شخص اگر بہت زیادہ اس کے اندر خودداری ہے، تو سامنے والا دشمن سوچے گا کہ اس کی خودداری کی وجہ کیا ہے۔ ایک باغ ہے اس کے پاس جس میں 1000 ناریل کے درخت ہیں، اس کی ناریل کی پیداوار نے اس کی معیشت کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ اس حد تک خودداری سے جی رہا ہے، تو دشمن یہ چاہے گا کہ آپ کو نہیں چھیے گا، آپ کے اس باغ کو برباد کرے گا، تاکہ آپ جیسے ہی وہ باغ برباد ہوگا آپ خود بخود زندگی بھر
भर रेंगते कीड़े की तरह जीते रहेंगे और उसको आपका तरसना, बिलखना, तड़पना देखकर उसको खुशी हासिल होती रहेगी। आज कौमों के साथ भी, अफराद के साथ भी यही टेक्निक आजमाई जाती है। इसलिए तालीम के मैदान में खुलूस के साथ आने की जरूरत है। इसलिए अपने मादरी जबान की तरफ बेइंतहा प्यार के साथ आने की जरूरत है। एक एक फर्द को लेकर बहुत ही खुलूस के साथ जिंदगी जीने की जरूरत है। एक माहौल बनाने की जरूरत है। ऐसा माहौल मैं बार बार इसकी तरफ तवज्जो दिलाती हूँ। हमें आज ऐसे माहौल की जरूरत है जिसमें हमारे कम से कम तर सलाहियतों वाला भी इंसान भी खुद को महफूज तस्वुर करे। अरे जो दानिश्वर होता है, जो ताकतवर होता है, जिसके आबाई तौर पर जिसके यहाँ अच्छा माहौल होता है, वो तो जमाने की हर मुश्किल के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे आगे बढ़ने वाले 10% भी नहीं होते। क्या हम उन 10% को देखकर 90% को हम अपने अफराद को यूं ही छोड़ देंगे? तो उन 10% लोगों को चाहिए कि अपने साथ उन 90% लोगों को आगे लेकर चलने की कोशिश करें। यही दानिश्वरी, यही आज की वक्त की अहम जरूरत है। मैं चाहे कितनी ही बातें आपको बताऊं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो मैं कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। इसके लिए मैं चाहूंगी कि एक और कहानी की तरह बिल्कुल छोटी 5-6 जुमलों की कहानी आपको बताऊंगी। एक शेर और शेरनी जंगल में आराम से बैठे हुए थे। उनकी नजरों के सामने उनके 2 बच्चे खेल रहे थे। कहीं से दूर हाथियों का एक झुंड आया और ये बच्चे खेलते खेलते हाथियों के झुंड के पैरों तले आए और कुचले गए और मर गए। जंगल के दूसरे जानवर जो ये माजरा देख रहे थे वो आए और कहा, महाराज, आज हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपके बच्चों को हाथियों ने कुचला है। शेरनी सुनते ही चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। लेकिन शेर बड़े ही तदब्बुर के साथ उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो हरगिज़ हो नहीं सकता। हाथी तो मेरे दोस्त हैं। फिर जानवरों ने कहा, नहीं महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है, ये सच है। तब भी शेर ने कहा हठधर्मी के साथ कि ये हो नहीं सकता, हाथी मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त मेरे बच्चों को कुचल नहीं सकते। और उसने कहा, देखो दूर दूर जंगल में बकरियां माहौल से बेखबर घास चरने में मसरूफ थीं। शेर और शेरनी गुस्से और जलाल में दौड़े और उन मासूम बकरियों को जो माहौल से बेखबर सिर्फ घास चरने में मसरूफ थी, गए और सारे के सारे रेवड़ कर रोन डाला और मार दिया। यहीं पर कहानी खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी के साथ मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर ये तमसीली कहानी है तो क्या अगर इन बकरियों को और शेर को हम इंसानी तनाजुर में देखें और हम सोचें, क्या मैं ये सवाल कर सकती हूँ आपसे कि आज दुनिया में मुसलमान बकरियों की तरह हो गए हैं और हमारे दुश्मन शेर की तरह हो गए हैं? शेर बनने और बकरी बनने के लिए चंद सिफात की जरूरत होती है। वो भी जानदार है, ये भी जानदार है। इंसान इंसान एक होता है। मिट्टी तो वही होती है। जब ईंट बनती है तो कोई ईंट मस्जिद में लगती है, कोई मैखाने में लगती है। मिट्टी तो वही होती है, जानदार भी वही है, इंसान भी वही है। फिर ये फर्क क्यों है? किन अक़दार का है? ऐसे कौन से अक़दार हैं जो एक शेर के लिए अहम साबित होते हैं और वो कौन से कमजोर अक़दार हैं जो बकरियों के लिए लाजिम है? तो आज हमारी हालत क्या बकरियों की तरह है कि हम चाहे हुसूल हो न हो, रोंदे हम जा रहे हैं, कत्ल हम हो रहे हैं, खून सस्ता हमारा हो गया है, बहू बेटियां हमारी
बे आबरू हो रही हैं। क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि हम इस बात पर गौर करें? क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि हमारे अंदर ऐसे कौन से सिफात हैं जो माजी में तो थे लेकिन आज नहीं है? मैं अपनी तरफ से मालूमात आप पर लादना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सोच का अलाव आज आपके अंदर खुद अंदर से आना चाहिए, दरून से होना चाहिए। जब तक कि सोच तब्दील होती है या तब्दील होनी होती है तो वो सोच अंदर से आती है। पैगंबरों ने भी यही काम किया कि उन्होंने बाहर से लादने की जगह इंसान को उसके दरून से सुधारने की कोशिश की है, उसके ख्यालात समेत, उसकी रूहानी कैफियत समेत, उसके अंदर से उसे सुधारने की कोशिश की है। तो आज हमें तज़किया नफ्स की जरूरत है, आज हमें खुद के दरून में झांकने की जरूरत है, आज हमें अपने आप को सुधार कर हमारे कमजोर लोगों को अपने साथ लेने की जरूरत है, उनको भी अपने साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक चीज जियो और जीने दो का जो एक स्लोगन है या एक जो है एक जुमला जो है ये मौजूद है हमारी जिंदगियों में। आज हम सोचते हैं कि मैं जी रहा हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी बिल्डिंग बड़ी हो गई है, मेरे बच्चे आला स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके बाद मुझे क्या जरूरत है बाजू वाले के बारे में सोचने की, जबकि हमारी तालीमात ये कहती है पड़ोसी का भी हक है आपके हर चीज हम भूल चुके हैं। मैं आज के दिन जबकि आप तंज़ व निज़ाम के शोरा को सुनने जा रहे हैं, जहां आपकी तकालीफ को हम उनके निज़ाम में बोलकर कुछ वक्फे के लिए कम करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो निज़ाम जो शिगुफ्तगी आपको दी जाएगी, मैं चाहती हूँ कि वो निज़ाम पायदार हो आपकी ज़िंदगी में और हमेशा कायम रहे। वो निज़ाम तकालीफ को झेल कर मुस्कुराना बहुत बड़ी आदत है। और जो शख्स ये हौसला रखता है, क्या वो ये हौसला नहीं रख सकता कि अपनी कमजोरी को दूर करे, अपने आप को सुधार ले? और ये सुधारना बहुत आसान है, वो ऐसे सिर्फ तय करना है और आप ही को तय करना है, हम में के हर फर्द को खुद ही तय करना है। कोई कानून के जरिए से हमें इस किस्म की मराआत दी जाने का तसव्वुर अब हम नहीं कर सकते। ये सुधार अंदर से आना है, दरून से आना है, तब कहीं हम सुधरेंगे। तो आज मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए बस आप लोगों से ये इस्तग़फ़ा करूंगी कि आप अपने आप को कमजोर हरगिज न समझें, क्योंकि हम तारीख का वो हिस्सा है जिन्होंने सिर्फ 23 साल के अंदर आधी कौम दुनिया पर हुकूमत करके एक नई तारीख दुनिया को दिखाई है। हम वो तारीख अपने साथ रखते हैं जिन्होंने कम से कम खून बहाकर ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को अपने किरदार से पता किया है। तारीख आज जाफरानीकरण का हिस्सा है। हम घर में होते हैं और हमारे बच्चों को दहशतगर्द ठहराया जाता है। तो इन चीजों की तरफ भी हमें सोचने की जरूरत है। आज एक आमिर खान ने सिर्फ एक जुमला कहा कि ये वतन में इस धरती पर रहने के बारे में मैं सोचना चाहता हूँ या दूसरी मर्तबा सोच रहा हूँ, तो इतने मामले होते हैं और खुद उनके जाफरानीकरण के जो ओहदेदार हैं वो किस किस्म की धांधलियाँ करते हैं जिन्हें कोई पकड़ने वाला तक नहीं है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला तक नहीं है, कि ये ऐसी हालत को हम पहुँच गए हैं कि मारते तो हैं लेकिन मारने के बाद रोने पर भी पाबंदी लगाई जाती है। तो ऐसी हालत में आप रोने की जगह मुस्कुराना सीखें, खैर लगाना सीखें और खैरों के जरिए से उस खौफ पर जो तमाचा मारती है दरअसल उनके एहसासात पर तमाचा मारे और कुछ बन कर दिखाए तालीम के जरिए से किरदार के।
مجھے ہمارے رکن نعمت اللہ خان صاحب نے یہ ترجیح دی ہے کہ اکیڈمی سے متعلق بھی کچھ بتائیں. میں اکیڈمی سے متعلق آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں صرف ایک جملے میں کہ میں اردو کا کام اپنے تمام اراکین کو لے کر ایسے کر رہی ہوں جیسے عبادت کی جائے. ہمارے بزرگ بھی بتائیں. آج میں یہاں موجود آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنی زبان کے ہلکے سے مشاعرے کو سننے کے لیے رات کے جاڑے کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں. مبارکباد دیتے ہوئے چاہوں گی کہ یہ جذبہ آپ کا سلامت رہے. زندگی کے ہر قدم پر، ہر موضوع میں، ہر میدان میں اسی جذبے کے ساتھ ہم میں کا ہر فرد جیے، اس دعا کے ساتھ. اور فاروقیہ والوں کے لیے بھی ڈھیر ساری دعاؤں کا نذرانہ دیتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتی ہوں. شکریہ. زبان سخن کو سخن بان پر اترسے گا، سخن کتاب میری طرفے سخن اترسے گا. آپ تمام کو یہاں پر رنز و ملا کے مشاعرے کو سننے کے لیے یہ سنجیدہ پروگرام تھا. اس کے بعد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مائک پر جو ہے عالمی شہرت یافتہ جناب شبیر اور مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھائیں. میں ہمیں سے چند لوگوں کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ اکیڈمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پروفیسر ریاض احمد صاحب کی گلوبردی کریں. ہمارے گھٹنے اکیڈمی جناب شفیع حافظی صاحب سے پھر درخواست ہے کہ وہ جناب شفیع حافظی صاحب شکیب الرحمان صاحب پرنسپل کی گھر میں خوشی ہو جائے. थोड़ा क्लोज हेलो इधर क्लास आवे जनाब टिपिकल जगतियाली तेलंगाना जनाब इरफान रायचौरी साहब, समीर जनाब नदीम फारूकी, जनाब वहीद पाशा कादरी साहब हैदराबाद, जनाब नवीन मुस्तल हंगामा, जनाब यन बहुत सोते ही यारो 4 दिन में, जनाब मुश्ताक सईद साहब, अब्र है, गुलजार है, मैं है, खुशी का दौर है. अब्र है, गुलजार है, मैं है. ख़वातीन और हज़रात, कल यानी बरोज़ पीर 11:30 बजे ऑल इंडिया कॉलेज में मेरिटोरियस स्टूडेंट स्टेट लेवल के और यूनिवर्सिटी लेवल के रैंक्स मिले. और दूसरी बात यह है कि मौलाना अली मियां अकेडमी जो खटकल में काम करती है उसका स्टडी सेंटर हमारे पास है. हमारे साथ सारे कॉन्वेंट्स हो या उर्दू स्कूल्स हो, वहाँ दीनियात का कोर्स चलाते हैं. उनका इम्तहान लिया जाता है. उस इम्तहान में जो नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं उनको
अली मियां अकादमी की जानिब से 1 ग्राम की गोल्ड मेडल पहले दी जाती थी, अब सोना महंगा हो जाने से आधा ग्राम की गोल्ड मेडल दी जा रही है। अल्लाह का करम है कि तकरीबन 100 तुलबा और तालिबात ने एक आधे ग्राम की गोल्ड मेडल हासिल की है। कल उसका जलसा जो है, उसकी तकसीम का जलसा कल 11:30 बजे मकाम फारूक टेक्निकल कॉलेज ऐवान टीपू में मुनाक़द किया गया है। मुझे इससे बड़ी खुशी है कि जब मैं मोहतरमा को फ़ोन में बता रहा था कि आप मुशायरे के लिए आप तशरीफ़ ला रहे हैं, तो एक रात रुक जाइए, कल उस फंक्शन में आप रहकर अपने हाथों से तकसीम कर दीजिए। तो ये मोहतरमा का बड़ा फर्ज था कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाया है। मैं उनका मशकूर हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप भी शरीक हो जाएँ 11:30 बजे और मकाम टीपू ऐवान